Okay, so let us start with today's class. A very good afternoon to all my dear friends. How are you all? I hope you all are doing good. And now we will first revise whatever is being done because there was a holiday, a long weekend for you all. So I'm assuming that you will have forgotten whatever I have taught, so I'll just brush up your knowledge. I will revise everything and then we will start with the next topic today. Okay? And I'm really very sorry, Ayush, if I was not able to see your chart. But I think mostly मैंने बहुत सारे students का Instagram पे chart देखा भी है. बहुत कम बच्चों ने story upload की थी, तो जिन्होंने upload की थी मैंने उनकी story re-upload की है. Many students were saying that ma'am we feel shy uploading the story, so it is all fine, that is fine. Upload करना story was a secondary thing. The primary thing was that you learned the provisions and you were able to write down that chart on your own. So really very proud of every one of those who have actually learned the types of contracts and have made the chart on their own. Okay, so wonderful, and keep it up. Okay. So good. खुशी कह रही है मैम सब कुछ याद हो गया है और अच्छे से याद हुआ है. I'm so sorry, Kajal, that I was not able to check your chart. Sejal, I'm sorry. ठीक है, चलो आ जाइए. I'm just turning off the chat right now because you see, जब कभी भी मैं chat on करती हूँ, you all start behaving like small kids और आप लोगों का messaging करना चालू हो जाता है. So I am starting with the revision process. मैं concept समझाऊंगी और concept complete होने के बाद ही I will be turning on the chat. Okay? Is there some voice problem? I am asking the last question. Is there some voice problem? Please let me know. Otherwise, I have to start with the revision, okay? Just answer yes or no. So no, I have conducted the poll. I don't think so there is any voice problem. जिन लोगों का कुछ voice problem आ रहा है, please log out of the application and log in again. I have to start the class without wasting a single minute. Okay? Chalo. What do you mean by the word contract? A contract means an agreement enforceable by law. A contract means an agreement enforceable by law. So basically, one, there should be an agreement and this agreement should be enforceable by law. What do you mean by the word agreement? Agreement is equal to offer plus acceptance. तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, और यही अग्रीमेंट में अगर लीगल इंटेंशन है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. Along with that, we have also learned that हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होना तो जरूरी है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है. So the wider term is an agreement, whereas the narrower term is the word contract, because even a social agreement is an agreement, even a domestic agreement is an agreement, even a commercial agreement is an agreement, but only a commercial agreement turns into a contract, whereas a domestic and a social agreement remain to be as agreement. साथ साथ में हमने देखा था the essentials of a valid contract. Section 10 में कुछ essentials दिए हुए हैं, and other than section 10 there are certain general points which are to be kept in mind in order to form a valid contract. The first point, कोई भी contract बनने के लिए आपको लगते हैं कम से कम दो parties. ऑब्वियसली एक जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसे ऑफर दिया जा रहा है. ऑफर और ऑफरी. एक बार ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफरी विल बिकम द एक्सेप्टर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द के डेफिनेशन में ही देखा था, क्योंकि एन अग्रीमेंट enforceable by law is known as a contract. So there should be an intention to create a legal obligation.
Along with that, my dear friends, you also know कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है. जैसे कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा है, बेचा है, या अगर आप चेक इशू करते हो, अगर लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेना, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है, जब तक ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सो बेसिकली the contract के terms should not be vague, they should be clear. जैसे कि say for example, मैंने आपको दिया था क्लास में एग्जाम्पल कि give me 1 liter of oil. अब जब मैं कहती हूं वो किराना वाले अंकल से कि भैया मुझे 1 लीटर ऑफ ऑयल देना, my terms are very vague. 1 liter of oil would mean what? Is it cooking oil? Is it hair oil? Or is it motor oil? My terms are vague. My offer cannot be constituted as a valid offer. And last point says, जो भी चीज आपने डिमांड की है कॉन्ट्रैक्ट में उसको परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए. So you cannot enter into a valid contract wherein one party is giving the other party 5 lakh rupees to make a dead person alive. क्या एक dead person alive हो सकता है? It is not possible of being performed and thus the contract cannot be a valid contract. फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 में भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग विथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है. अग्रीमेंट के ऊपर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी. इनफैक्ट हमने एक पूरा सेशन ही अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को समझने में लिया था. आई होप यू स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर लेक्चर. Then the parties consent should be free. अगले दिन हमने पूरा सेशन इस फ्री कंसेंट के ऊपर ही देखा था. क्या आपको दीपिका जी का एग्जाम्पल याद है? The parties should be thinking about the same thing in the same sense at the same time, जिसको कहते हैं, come on tell me my dear friends, इसी को लैटिन में क्या कहते हैं? Consensus ad idem. And now पार्टीज का कंसेंट तो होना जरूरी है, बट कंसेंट फ्री होना भी जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? द कंसेंट शुड नॉट हैव बीन कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Along with that, the parties should have the capacity to enter into a contract. What do you mean by capacity to enter into a contract? Okay, capacity means the parties should be major, sound mind and not disqualified by law. Okay, major आप तब होते हो when you have completed 18 years of age. Your mind should be sound, so you should be in a capacity to understand what is happening with you in the contract. And lastly, lawmaker ने कुछ लोगों को disqualify किया है to enter into a contract. अगर आप वो disqualified लोगों में नहीं हो, you can enter into a valid contract. There should be a lawful consideration. Consideration का Latin word है, क्या आपको याद है? Quid pro quo means something in return. तो एक तो consideration का होना जरूरी है and the consideration should be lawful in nature. Okay, and plus your object should also be lawful. Object मतलब आपके contract का purpose. What is the purpose of entering into the contract? Okay, तो ये purpose valid होना जरूरी है. And 6th point I already told you all will be taught to you all in unit number 3. उसी के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को देखा था. इसी के आपने वंडरफुल चार्ट्स बनाए हैं कुछ बच्चों ने. इनफैक्ट अपने नोटबुक में कलरफुल पेन्स यूज किए, हाइलाइटर यूज किए हैं एंड दे हैव मेड द चार्ट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव. तो वो चार्ट्स को देख के एकदम मजा आ गया मुझे. एकदम मेरे स्टूडेंट के लाइफ के दिन जो है वो याद आ गए. उसी चीज को एक्चुअली ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बुक्स भी जो है वो कलरफुल बनाई थी. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइफ बिकम्स रियली वेरी बोरिंग और उसमें पढ़ाई करना मतलब वुड बी द लीस्ट
thing that we would want to do throughout the day. Okay, so ये छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि मेरी बुक्स को कलरफुल बनाना, चार्ट्स बनाना, या आपको रिवीजन में इन्वॉल्व करना, या आपको कहना कि चलो चार्ट्स बनाओ, इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करो. इससे क्या हो जाता है, यू गेट अ लिटिल किक. And that is the reason why I tell you all to do all these things. So देखो बहुत बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं और ऐसा लगता है कि दिन भर में हमने कुछ तो अलग किया है एज कंपेयर टू द नॉर्मल बोरिंग रूटीन दैट वी आर फॉलोइंग एवरी डे. और हमें पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या हुआ, हमारे दोस्त घूमने के फोटोज अपलोड कर रहे हैं, हम भी तो जो आज दिन भर में कर रहे हैं उसके फोटोज अपलोड कर सकते हैं ना. उनको उनके आज कर्मों का फल बाद में मिलेगा, हमें भी हमारी पढ़ाई की कर्मों का फल बाद में मिलेगा. सो एवरीवन इज गोइंग टू गेट रिटर्न्ड ऑफ व्हाटएवर दे आर डूइंग टुडे. एंड दैट वाज अ लिटिल स्टेप दैट आई टुक ऑन फ्राइडे एंड आई टोल्ड यू ऑल, आप ये चार्ट्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, इट विल श्योरली गिव यू अ किक. और अब मुझे आप लोगों के चैट से भी समझ में आया, जो लोगों के अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी ओके फॉर इट, जिनके मैं मैसेजेस नहीं देख पाई, उन लोगों को कितना बुरा लग रहा है मैम आपने हमारा मैसेज नहीं देखा. So I am understanding, yes, you are you are feeling kind of motivated by this particular method of teaching. तो देखो बदलते वक्त के साथ even I have learned कि मुझे भी अपने टेक्निक्स बदलने होंगे. कैसे 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो जो 25 साल पहले बच्चों को पढ़ा रही थी वही मेथड आप लोगों के लिए थोड़ी ना यूज कर सकती हूँ. आप लोग जनरेशन 0 यार, कम ऑन, हाँ ना. चलो रिवाइज करते हैं. Types of contracts on the basis of validity. Okay, on the basis of validity, contracts are divided into valid, void, voidable, illegal and unenforceable. What do you mean by valid contract? ऐसा कोई contract जिसमें हर वो कोई essential जो present होना जरूरी है according to the law वो present है, तो आपके contract को कहा जाएगा as a valid contract. What do you mean by a void contract? A contract जो initially was valid but now it is not possible of being performed is known as a void contract. What do you mean by a voidable contract? A contract which is enforceable at the option of one party but not at the other is known as a voidable contract. Voidable, able to be void, usually happens when one of the parties का consent is not free, when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. इलीगल अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पे आपके ऑब्जेक्ट ही इलीगल होता है, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. एंड एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट, बट एज सून एज यू करेक्ट द टेक्निकल डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल इन नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. मैंने आपको पहले कहा था इंप्लाइड नेचर के 3 टाइप्स होते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन, tacit contract में terms and conditions are known, and quasi contracts are contracts which are created by operation of law. साथ साथ में हमने देखा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्चुअली एक्सप्रेस किया है, या तो ओरली बाय यूजिंग वर्ड्स या तो राइटिंग बाय यूजिंग वर्ड्स. एंड लास्ट इज ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच यू हैव एंटर्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड. परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड एज एन एग्जीक्यूटेड और एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जिसको जो ड्यूटीज निभानी थी वो उन्होंने निभा दी है, उनको कहते हैं एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. वेयरएज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है या दोनों भी पार्टीज का परफॉर्मेंस बचा हुआ है. दोनों भी पार्टीज का अगर परफॉर्मेंस बचा है इट इज नोन एज अ बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और अगर एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है इट इज नोन एज अ यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी contract. Yes or no, guys? Yes. So इसी से now we are going to move on to the next concept. You know the rules of my class. I am not going to repeat it again and again. You have to sit straight like good children. No studying on your dining table, no studying on the sofa, no studying on the bed. You are supposed to sit like a good child as you used to do when you were in your primary school on the study table. Okay?
suspend whatever you are doing except for your studies. Your only concentration should be on me and the subject. Okay? And please, it's a personal request, agar koi doubt aata bhi hai, please keep the doubts to yourself. You are going to ask me the doubts only if it is relating to the topics that I have taught you. Okay? Contract Act takes around 65 hours. आप लोगों के 5 घंटे भी पूरे नहीं हुए. So don't expect that you are going to get the answers to every question that is coming in your mind immediately. Okay? So if you have a doubt relating to what I have taught you, you can ask me your doubt only after I finish explaining it to you all. Okay? So you have to behave in a professional manner. You are to be chartered accountants. ये ethics और ये सारे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स आपको अभी से इनकलकेट करने होंगे, अदरवाइज इन योर आर्टिकलशिप आप लोगों की बैंड बज जाएगी, रफ लैंग्वेज में वाट लग जाएगी आप लोगों की. ओके, विच आई डू नॉट वांट टू हैपन विथ यू ऑल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल यू आर लाइक माय यंगर ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई आउटसाइडर आपके ऊपर उंगली उठाए. हाँ है ना? I would always want you all to be appreciated in front of the crowd, and that is the reason why I am wishing that you behaved in this expected manner right from day one from the class. हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैम कितनी स्ट्रिक्ट है. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट यहां पे आप लोग मुझे गाली दे चलेगा, but I want you all to be appreciated in front of everyone in the office and in front of your friends, in front of your colleagues, in front of your relatives and everyone. And we have to show that even you could behave in a professional manner. Okay? So these are certain steps that I keep on inculcating in every batch. And I think you would really appreciate all these things that I am doing. Okay? It is only for your good. अगर आप चाहते हो कि मैं strict ना behave करूँ, I can keep the chat on always. I can entertain every chat. और फिर ठीक है, अगर हमारी बैच 3 महीने में नहीं तो हाँ 6 महीने में तो खत्म हो ही जाएगी. Right guys? Yes. So if you have done the revision with me, please give me a thumbs up, and we are going to begin with the lecture. Come on. Just give me a thumbs up if you are with me and you were able to give the answers. And chalo. लॉफुल कंसिडरेशन का एग्जाम्पल समझा दो. लॉफुल कंसिडरेशन के एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिया, यहां पे दिया हुआ है ए अग्रीज टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100 एंड बी इज प्रॉमिसिंग टू पे ₹100 फॉर द बुक. सो दिस इज अ कंसिडरेशन एंड दिस कंसिडरेशन इज अ लॉफुल कंसिडरेशन. और ये जो प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करने की बात है, दिस यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. ओके, यूनिट नंबर 3. चलो, आई हैव गॉट द थम्स अप फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. देखो, sometimes if the lecture lags, it might happen because your connectivity is not good. Okay, so you have to have a reasonable good connection for the lectures, and then only the lectures will not lag. And sometimes it may happen that there is a problem even in my network, so the network might fluctuate, but you have to be patient. Okay, only if there is a black screen, you let me know about the black screen. Otherwise, even if the lecture is lagging because the net is fluctuating, so you have to be a little patient. Okay, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन बिटवीन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपने लास्ट टाइम का लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा क्या? देखो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन, whereas implied contract mein terms and conditions are not known. Look, I told you all, ask me your doubts. Okay, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज मैं वापस से explain करूं, I will be uploading. एक ही lecture मेरे साइड से upload करना pending है, वो है 11th का.
वो लेक्चर में अपलोड कर दूंगी. प्लीज वॉच दैट लेक्चर वन मोर टाइम. एक्सप्लेनिंग एवरी कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल. आई विल टेल यू दिस बैच इज अ बैच ऑफ अराउंड 1350 स्टूडेंट्स. हर एक बच्चा हर एक चीज मुझे पूछने लग जाएगा. कोई बोलेगा मैम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझाओ, कोई बोलेगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट समझाओ, कोई बताएगा इंप्लाइड समझाओ, कोई बोलेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाओ, कोई बोलेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाओ. आई विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन. ओके, so you have to respect that fact. If you have not understand a particular concept, please watch the backup lecture that will be uploaded. I will not be able to explain the concept again for every one of y'all. Okay, for me every one of y'all are the same, but explaining the concept again is not possible. Clearing your doubts is a different thing. Okay, so please understand the situation from my side. I think अगर you will step into my shoes, you will totally understand what I am going through. Okay, एक तो ये बैच हमारी फेस टू फेस बैच नहीं है, वर्चुअल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कंट्रोल जो आप लोगों के ऊपर होना चाहिए वो ऑलरेडी नहीं है. सो आई कैन नॉट रिस्क एनीथिंग. ओके, आप खुद देख रहे हो कितने सारे बच्चे अननेसेसरी ग्रुप में चैट करते हैं और मुझे एक्सप्लेन करने बोलते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, प्लीज वॉच द अपलोडेड लेक्चर. आप लोगों के लिए अपलोडेड लेक्चर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है. एक तो आप लाइव देख पा रहे हो और प्लस आप अपलोडेड लेक्चर भी देख सकते हो. सो वॉच दैट लेक्चर एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर्ड. ओके, आ जाइए. ऑफर और प्रपोजल पेज नंबर 11 पे हूं. ओके, अब देखो, you all have your PPT books, so you do not have to write anything. You are only supposed to concentrate on what I am teaching you all. Okay, so whenever a person asks somebody, okay, to do something, it is known as a proposal, or say for example it is known as an offer. तो जैसे कि मैंने आपको पूछा, will you purchase this iPhone of mine for rupees 90,000? क्या आप मेरा ये फोन 90,000 में खरीदोगे? अब यहां पे मैंने क्या किया है? I have given you an offer. I have given you an offer to do something. I have given you an offer to do something. Okay, this is known as an offer. अब इसी ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो या तो फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो. जब मैंने आपसे पूछा डू यू वांट टू परचेज माय फोन फॉर रुपीज 90,000, यू विल ईदर से यस और ईदर यू विल से नो. अगर आपने नो कह दिया तो कहानी खत्म हो गई, बट अगर आपने हाँ कह दिया, ऑफर को मिल जाएगा एक्सेप्टेंस. And because there is a legal intention, okay, then this agreement will turn into a contract. ये जो ऑफर मैंने दिया था, इट वॉज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट. ये जो ऑफर मैंने आपको दिया था, दिस ऑफर वॉज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट. जहां मैंने आपको कहा था क्या आप मेरा फोन खरीदना चाहते हो. तो एक ऑफर कैन बी टू डू समथिंग. ऑफर कैन बी टू डू समथिंग. जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहां पे आरके दीपिका को पूछ रहा है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे. यहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है. यहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है दैट विल यू मैरी मी. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑफर दैट आई गिव टू यू और आरके इज गिविंग टू दीपिका इज an offer to do something. Is an offer to do something. Basically it is for a positive act. जो पर्सन ऑफर देता है, मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरा फोन 90,000 में खरीदना चाहते हो. आरके दीपिका को ऑफर दे रहा है कि ही दीपिका क्या तुम मुझसे शादी करोगे. जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे कहते हैं एज द ऑफरर. क्या कहते हैं, बोलो तो मेरे साथ, उसे कहते हैं एज द ऑफरर. और जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी. उसे कहते हैं एज द, कम ऑन टेल मी गाइस, ऑफरी. जैसे ऑफरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, आप कहते हैं ऑफ कोर्स यस यस मैम वी वुड लव टू परचेज योर आईफोन. जैसे आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, आप बन जाते हो एज द एक्सेप्टर. आप बन जाते हो एज द एक्सेप्टर. ये जो ऑफर जो मैंने आपको दिया है, दिस
offer is for a positive act. This offer is for a, come on, tell me guys, for a positive act to do something. But एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, okay? An offer can also be for a negative act. An offer can also be for a negative act. An offer can also be for a negative act. An offer can also be for a negative act. Negative act means यहां पे कुछ ना करने के लिए आपने ऑफर दिया है. वहां पे आपने कुछ प्रोडक्ट को खरीदने का ऑफर दिया था. यहां पे अब जो आप ऑफर दे रहे हो, कुछ ना करने का ऑफर दे रहे हो. दिस इज नोन एज अ नेगेटिव act. This is known as what? Come on, tell me guys. It is known as a negative act. Example dekhe, you will understand it after you listen to the example very carefully. So suspend whatever you are doing, okay? Please concentrate on the topic. I am not going to entertain any silly doubts that you are asking me, and if you tell me please explain that particular concept again, I am not even going to reply to it, okay? So suno meri baat. यहां पे देखो क्या हुआ है. दो पार्टीज है, एक टॉम और एक जेरी. इन दोनों भी पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है. दोनों भी पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है. अब देखो यहां पे क्या हुआ है. डेटर और क्रेडिटर मतलब आप लोगों को पता होगा, जब दो लोगों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, मतलब क्रेडिटर को डेटर से पैसे आने हैं. क्रेडिटर को डेटर से पैसे आने हैं. ओके माय डियर फ्रेंड्स. तो देखो यहां पे क्या हुआ है. टॉम को जेरी से पैसे आने हैं. क्यों आने हैं? क्योंकि कुछ साल पहले टॉम ने जेरी को 1 लाख का लोन दिया था. उसी के बदले में अब उसको पैसे आने हैं. अब देखो क्या हुआ है. जब वो ड्यू डेट पे जेरी से पैसे मांगता है, जेरी कहता है, हे टॉम, मैं तुझे तेरे पैसे नहीं देने वाला हूं, तुझे जो करना है कर ले, जा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू योर मनी बैक. अब ऐसे केस में टॉम तो उस चीज को सीरियसली ले लेता है. कहता है, अच्छा मेरे दिए हुए पैसे तो मुझे रिटर्न नहीं करेगा जब समय आ चुका है. ओके, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू. क्योंकि नाउ आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है. आपने मुझसे लोन लिया था और इसी लोन के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज वो पेमेंट ड्यू होता है, एंड यू आर सपोज टू गिव दिस मनी बैक टू मी. इफ यू आर नॉट रिटर्निंग इट टू यू, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू. अब जैसे ही टॉम बताता है जेरी को कि मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा. देखो मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है. कोर्ट कचहरी केस फाइल करना, मतलब अगर पता चलेगा समाज को कि जेरी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, लोग उसे एकदम अलग ही तुच्छ नजर से देखना चालू कर देंगे. तो जेरी बहुत डर जाता है. जेरी कहता है, नो नो टॉम, प्लीज डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी फॉर 6 months. मुझे और 6 महीने का समय दीजिए. मेरी बहुत तंगी चालू है. आप खुद जानते हो कोरोना का समय चालू है. मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ा हुआ है. मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे. हाउ विल आई रिटर्न इट बैक टू यू माय डियर फ्रेंड? ऐसे समय पे अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? प्लीज मुझे 6 महीने का और समय दे दो. आई विल गिव यू दिस मनी आफ्टर 6 months. अगर तुमने 6 महीनों तक मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, लिसन टू मी नाउ केयरफुली, अगर आपने मेरे अगेंस्ट 6 महीनों के लिए केस फाइल नहीं किया, अगर आपने मेरे अगेंस्ट 6 महीनों के लिए केस फाइल नहीं किया, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज. अब यहां पे जेरी ने जो ऑफर दिया है 10,000 रुपए एडिशनल देने का, इज फॉर नॉट डूइंग समथिंग. सो व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टॉम is not to file a case against him. कुछ ना करने के लिए आप पैसे ऑफर कर रहे हो. कुछ ना करने के लिए आप पैसे ऑफर कर रहे हो. दिस इज अ नेगेटिव ऑफर. लॉ मेकर ने दोनों भी चीजों को अलाउ किया है. सो एन ऑफर कैन ईदर बी अ पॉजिटिव ऑफर और एन ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर. पॉजिटिव नेगेटिव ये मेरे शब्द है, लॉ मेकर के शब्द है. एन ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मीन्स नॉट टू डू समथिंग. चाहे ऑफर पॉजिटिव है
या चाहे ऑफर नेगेटिव है, बोथ द ऑफर्स आर लीगली अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ. सो बेसिकली पते की बात यह है, टू कंक्लूड इन वन सेंटेंस आई कैन कंक्लूड दैट एन ऑफर कैन ईदर बी अ पॉजिटिव ऑफर or it can be a negative offer. Positive means you have made an offer to do something, whereas a negative offer is not to do something. कुछ ना करने के लिए आप किसी को ऑफर दे रहे हो. Whether the offer is positive or whether the offer is negative, both kinds of offers are allowed in the eyes of law. Okay? ग्रेट, वंडरफुल. तो अब हमें डेफिनेशन रीड करती हूं. तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू मतलब पॉजिटिव एक्ट, or to abstain from doing anything. Abstain from doing anything means not to do something, matlab negative offer, with a view to obtaining the assent. Assent matlab consent. Consent matlab manzoori of that other person to such act or abstinence. He is said to make a proposal. प्रपोजल का ही इक्विवेलेंट वर्ड है ऑफर. तो अगर आप ऑफर भी कहते हो चलेगा, आप प्रपोजल भी कहते हो चलेगा. दे आर वन एंड द सेम. आई विल बी यूजिंग द वर्ड ऑफर इन माई क्लास. इफ यू विश टू, यू कैन यूज द वर्ड प्रपोजल. इट्स द सेम एंड will not make a difference even in the examination. Okay, so look, offer can either be a positive offer or an offer can also be a negative offer. Why do you give the offer? You give an offer so that you obtain the consent of the other person. This offer that you make can either be positive or negative. Both kinds of offers are valid in the eyes of law. यही ऑफर, ओके, यही ऑफर की जो मैं बात कर रही हूं, could be of various types. This offer that I'm talking about could be of various types. तो अगले ही पेज पे आप आ जाओ, पेज नंबर 12 पे. We are going to look into the kinds of offer, and the first kind of offer that I'm starting with is a special offer. Special offer पढ़ाने के बाद I will come to general offer. Okay. First kind of offer is a special offer. Okay. So offer का first kind is special offer. क्या आप ये स्पेशल ऑफर का एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो? एंड कैन यू ऑल गिव मी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल ऑफर? चलो, आई विल टर्न ऑन द चैट. आप मुझे रीड करके बताओ सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशल ऑफर. ओके, बहुत इजी है.
ओह आई एम सो सॉरी, माइक वॉज ऑफ। ये एग्जाम्पल मुझे मस्त लगा जहां पे आपने बोला अंबानी ने विराट को ऑफर दिया कि क्या तुम मुंबई इंडियंस में आओगे फॉर 18 करोड़। बेस्ट है। चलो, राम ने श्याम को ऑफर दिया, ऐश्वर्या ने आलिया को ऑफर दिया। सही एग्जाम्पल्स दे रहे हो आप लोग। सुनो ना मेरी बात, सौरभ को मैंने ऑफर दिया है, सौरभ को डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। बेस्ट है। सुनो ना मेरी बात। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, सुनो ना, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, आई एम ऑफरिंग यू ऑल। ओके, तो अच्छा, पहले तो स्पेशल ऑफर का एग्जाम्पल जो आपने यहां पे देखा था इज जहां पे, सुनो ना मेरी बात, आरके दीपिका को पूछता है विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। देखो यहां पे ये जो ऑफर दिया गया है, यहां पे ये जो ऑफर दिया गया है, दिस इज अ स्पेशल ऑफर। सो बेसिकली जब ऑफर दिया गया है आरके to Deepika, will you marry me? This offer is a special offer, a one-to-one offer. It is only Deepika who can say yes or no. चाह कर भी हम हाँ या ना आरके को नहीं कह सकते। जेठालाल ने नट्टू काका को सैलरी बढ़ाने के लिए ऑफर दिया है। हे भगवान, कसम आयचं तुम लोग का। तो सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात, जब दीपिका को पूछा जाता है विल यू मैरी मी, इट इज ओनली दीपिका हु विल से यस और नो। चाह कर भी आप और मैं एक दूसरे को हाँ, मतलब आरके को हाँ या ना नहीं कह सकते। यस और नो, दिस इज अ स्पेशल ऑफर व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर person. Similarly, even if you are making an offer to a particular group of persons, is also a special offer. जैसे कि I gave you an offer. Okay, suppose this is me, and I gave you all an offer. Okay, who are you all? You all are my November 21 live streaming students. Okay, और मैंने आप लोगों को ऑफर दिया है, assuming our batch is a face-to-face batch. Okay, मैं कहती हूं आज क्लास के बाद क्या आप लोग सब मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे? अब 6:45 बजे तक खुला है, सो लेट्स ऑल गो फॉर डिनर। वील मीट एट 6 o'clock, वील हैव डिनर, वील चिल एंड देन वील गो एट आवर हाउस। ओके, अब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, यहां पे मैंने ऑफर किसी एक बच्चे को नहीं दिया। मैंने से हर्षिता या आशिमा या फातिमा या ध्रुवी या राज को नहीं दिया है, या सक्षम को या ओम को नहीं कहा है। मैंने आप सब लोगों को, सो ऑल दोज 1350 स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ओके, इन दिस November 21 बैच, इन सब लोगों को ये ऑफर दिया गया है। सो दिस ऑफर इज मेड बाय मी to a specified group of persons. क्या इसको स्पेशल ऑफर दे सकते हैं? क्या इसको हम स्पेशल ऑफर कह सकते हैं? क्या इसको हम स्पेशल ऑफर कह सकते हैं? आप लोग यस किसके लिए कह रहे हो? डिनर के लिए जाने के लिए यस कर रहे हो, या स्पेशल ऑफर है उस चीज के लिए आप यस कह रहे हो? बाय द वे, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर काल्पनिक, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, so the answer to this question is that this is a special offer. Okay, कुछ बच्चों के जवाब गलत आए हैं, let me correct you all, so please listen to me. Okay, why it is a special offer? It is a special offer whenever an offer is made to a single person or a specified group of persons, it is known as a special offer. It is known as a special offer. तो ये जो ऑफर अभी मैंने दिया है, it is made to a specified group of persons.
चाह कर भी मेरे सीए इंटर के स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिनर के लिए नहीं आ सकते। चाह कर भी मेरे पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिनर के लिए नहीं आ सकते हैं। डिनर के लिए मेरे साथ कौन आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे सीए फाउंडेशन के लाइव स्ट्रीमिंग के नवंबर 21 के बच्चे, मतलब आप लोग मेरे साथ डिनर के लिए आ सकते हो। आपके अलावा nobody can come with me for dinner. Getting this or no, my dear friends? This is a special offer. Whenever an offer is made either to a specified person or to a specified group of persons, तो यहां पे there was a specified group of persons, will be known as a special offer. So what do you mean by a general offer? What do you mean by a general offer? Whenever an offer is made to the public at large, it is known as a general offer. Whenever the offer is made to the public at large, it is known as a general offer. तो जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत सारे मंदिरों में भंडारा होता है. I don't know the English word for भंडारा, but जब भंडारा होता है, so now it is open for all. Anyone who wishes to can come and दर्शन करके प्रसाद का लाभ उठा सकता है. हाँ ना? This is known as a general offer, an offer that is open to the public at large. Anyone from the public, okay, can accept this particular offer. It is known as a general offer. So anyone who is desirous to accept it can accept it. It is known as a general offer. It is open to the public at large. Such an offer is known as a general offer. Okay, such an offer is known as a general offer. इसी से रिलेटेड, जनरल ऑफर से रिलेटेड, देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. और इस केस लॉ का नाम आपको याद रखना होगा. अभी तक आप लोगों का एक ही केस लॉ हुआ है विच इज बैल्फर वर्सेस बैल्फर. अब आप लोगों का सेकेंड केस लॉ है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड. Okay, now listen to me very carefully. What had happened in this particular case law? Okay, एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. और इस कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी हमारे स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेगा, स्मोक बॉल वाज अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन, ओके, दैट पर्सन विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा. ओके, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. और अगर आपने वो स्मोक बॉल्स ले लिए एंड उसके बावजूद यू कॉन्ट्रैक्ट दिस इन्फ्लुएंजा, वी विल गिव यू अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds. दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ, इसलिए द फिगर्स आर इन पाउंड्स. तो सुनो मेरी बात. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी गई थी कि कोई भी हमारी कंपनी की मेडिसिन को अगर कंज्यूम करेगा, दैट मेडिसिन वाज इन द शेप ऑफ बॉल्स विच वर ब्लैक, इसलिए स्मोक बॉल उसका नाम था. अगर आप उसको कंज्यूम करते हो, यू विल नेवर एवर कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा. एंड इफ इट ऑल यू कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा, वी विल गिव यू अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds. नाउ देयर वाज दिस लेडी कार्लिल who purchased these smoke balls. जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको उसने फॉलो किए. जितनी मेडिसिन कंज्यूम करनी चाहिए थी, जिस समय पे करनी चाहिए थी, उन सारी चीजों को उसने फॉलो किया. बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल शी सफर्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा. एंड बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी, कहते हुए कि हे जज साहब देखो, इस कंपनी ने कहा था
कि अगर हम मेडिसिन लेते हैं वी विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा, बट नाउ वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, तो हमारे साथ गलत हो गया है जज साहब। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स सुनो ना मेरी बात, क्वेश्चन ये अराइज होता है, सो दिस क्वेश्चन इज टू यू। यहां पे जब ये कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी, विल इट बी रिगार्डेड एज अ जनरल ऑफर? क्योंकि कंपनी का स्टैंड था कि जज साहब हमने कुछ ऑफर दिया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था, और अगर कोई ऑफर ही नहीं है, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है देयर इज नो अग्रीमेंट, एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ रहा है कंपनी का स्टैंड क्या है? कंपनी का स्टैंड ये है हमने सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, इट इज नॉट एन ऑफर। और अगर ऑफर नहीं है, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं है, और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्वेश्चन टू यू इज दिस एन ऑफर? एंड उस मेडिसिन को खरीदना, क्या ये ऑफर को एक्सेप्टेंस कहा जा सकता है? क्योंकि अगर ये ऑफर को एक्सेप्टेंस है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड शी इज एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड, और अगर यहां पे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं है मतलब शी इज नॉट एलिजिबल टू द रिवॉर्ड। सो थिंक एंड टेल मी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्या यहां पे कार्लिल ये रिवॉर्ड रिकवर कर सकती है? ओके तो सूर्या, खुशी, आशा, संजना, आदित्य, हर्षा, कानुप्रिया एंड राघव, तनीषा, अभिषेक, भानु, साइली, ईशा, तान्या, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम नॉट इवन एबल टू रीड द नेम्स। सचिन, मुस्कान, राम, पार्थ, ऐश्वर्या, रितिका, अपूर्व, संजना, नंदिनी, कृष्णा, सैयद, पारस, ओम, सब लोगों ने जवाब दिया है यस। क्या बात है, और आप सब लोगों का जवाब जो है वो एकदम सही है, बिंगो, क्या बात है, वंडरफुल। So yes, the answer to this question is यहाँ पे कंपनी ने ऑफर दिया था, and this offer was regarded as a general offer when this offer was open to the public at large. Anyone from the public was free to accept this offer. Let us check it out and cancel this other case law. It is going to be covered later on. लालमेन शुक्ला, देखो, in this famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the company. One lady, Carlyle, used the smoke balls as per the directions and even suffered from the influenza. फिर भी उसको influenza हुआ. Held she could recover the amount as it was amounting to an acceptance of an offer, and this offer was regarded as a general offer. So any offer that is made to the public at large is known as a general offer, whereas an offer that is made to a specified person or a specified group of persons is known as a special offer or a specific offer. Getting this or no, my dear friends? कोई इस बच्चे को बता सकता है इन्फ्लुएंजा का क्या मतलब होता है? Influenza is a kind of a flu. Now don't ask me what do you mean by a flu, like a viral, okay? Next. Next मैं जा रही हूं इस पे, काउंटर ऑफर जो हम सब लोगों ने प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में किया है। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। हम सब लोग एंड वी लव टू बार्गेन व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग। This bargaining is nothing but it is an example, a classic example of a counter offer that has been made. Offer के बदले में ऑफर देना is known as a counter offer.
तो जैसे कि इस लड़के को देखो, ये लड़का गया ना एक दुकान में ये शर्ट खरीदने के लिए और कहता है कि भैया ये शर्ट कितने के लिए है, टी शर्ट कितने के लिए? द शॉपकीपर सेज इट इज फॉर ₹500। ये लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं 500 क्या, इतना ज्यादा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल रुपी मोर देन 400। तो अब यहां पे ऑफर के बदले में ऑफर दिया जा रहा है जिसको कहते हैं काउंटर ऑफर। शॉपकीपर कहता है 400 रुपए तो मेरी खरीदी भी नहीं है, बट आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आई कैन ऑफर यू टू सेल दिस टी शर्ट फॉर ₹480। फिर ये लड़का कहता है कि भैया 480 इज टू मच, एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी, 450 में इसको सेटल करते हैं। तो ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ, कम ऑन टेल मी गाइस, काउंटर ऑफर इज नोन एज अ, कम ऑन टेल मी, काउंटर ऑफर। और जिस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली है तभी कॉन्ट्रैक्ट बना है। अगर आप रियलाइज कर रहे हो 500 का ऑफर, 400 का ऑफर, 480 का ऑफर जो है, इट विल लैप्स, क्योंकि यहां पे ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। अगर आप चाहते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बने, उसके लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है। अग्रीमेंट मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है। यहां पे 450 के ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऊपर के तीनों भी ऑफर्स लैप्स हो जाते हैं, ऊपर के तीनों ऑफर्स लैप्स हो जाते हैं। तो देखो, ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। ओके, यही ऑफर कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? जब आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज द ऑफर विल लैप्स। सो ऑफर के बदले में ऑफर मिलना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। ओके, ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, नाम में लिखा है क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। सो व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स they get exchanged in ignorance of the other's offer, it is known as a cross offer। कभी कभार हम कहते हैं ना, हम एक दूसरे को क्रॉस हो गए, मैं आपके घर पे आ गई, आप मेरे घर पे आ गए, सो वी क्रॉस्ड ईच अदर। यहां पे अब सिर्फ हम नहीं है, यहां पे हमारे बदले इट इज एन ऑफर। सो देयर इज दिस हाउस, और इसी घर को बेचने के लिए दीपिका आरके को कहती है कि हे आरके, विल यू परचेज दिस हाउस फॉर ₹2 CR। उसने घर को बेचने का ऑफर दिया है, दीपिका ने घर को बेचने का ऑफर दिया है, यही घर को और 2 करोड़ में। और इसी घर को खरीदने का ऑफर आरके ने दिया है, इसी घर को, और वो भी 2 करोड़ में ही खरीदने का ऑफर दिया है। तो अगर आप देखोगे, इसी घर को बेचने का 2 करोड़ में ही ऑफर दीपिका आरके को दे रही है, और इसी घर को खरीदने के लिए आरके ऑफर दे रहा है, वो भी 2 करोड़ में ही। अगर 2 करोड़ सेम फिगर है तो ही आइडेंटिकल होगा ना। अगर ये कह रहा है आई विल परचेस इट फॉर 1 करोड़, इट इज नॉट आइडेंटिकल। मैं कह रही हूं सेम घर सेम अमाउंट पे एक बेचने का ऑफर दे रहा है और दूसरा खरीदने का ऑफर दे रहा है। तो इसने यहां पे बेचने का ऑफर का लेटर लिखा है और इसने खरीदने का लेटर लिखा है। दोनों के ऑफर्स क्रॉस हो गए हैं, विच वर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम इन एवरी एस्पेक्ट्स। अब मुझे डाउट मत पूछना, मैम अगर इसने बेचने का ऑफर 3 करोड़ में दिया है और इसने खरीदने का 2 करोड़ में दिया है, क्या ये क्रॉस ऑफर है? नो, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल होना जरूरी है।
सो जब दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस हो जाते हैं, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग क्रॉस्ड बिकॉज द अदर पार्टी वाज नॉट अवेयर अबाउट द अदर पार्टीज ऑफर. सच एन ऑफर इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर. यहां पे उसने घर बेचने का ऑफर दिया है, यहां पे उसने घर खरीदने का ऑफर दिया है. अब यहां पे ऑफर और ऑफर हुआ है. क्या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है? क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन अग्रीमेंट, एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. अब एक आधी पार्टी जब ऑफर को एक्सेप्टेंस देती है तब माना जाएगा कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है. देखो यहां पे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है. अब क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, वी विल रिगार्ड इट एज अ वैलिड अग्रीमेंट. नाउ वी कैन रिगार्ड इट एज अ वैलिड agreement which is enforceable by law, which will be considered as a contract. आइए रीड करते हैं. when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offer is known as a cross offer. The offer is known as a cross offer. यहां पे आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस हुए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता है. हां, एक के ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिलता है देन ओनली इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. और आज के दिन का आखिरी कॉन्सेप्ट इज रिलेटिंग टू स्टैंडिंग और अ कंटिन्यूइंग और एन ओपन ऑफर. So an offer that is allowed to remain open for a particular period of time is known as a standing offer. जैसे कि say monsoon sale चालू है, so 15% flat discount on every garment that you are purchasing up to 1st of August. So an offer that is open for a particular period of time is known as a standing offer. Okay? An offer that is open for a particular period of time is known as a standing offer, open offer, or a continuing offer, whatever you want to say. Okay? Getting this or no, my dear friends? Yes or no? Bolo. So these are the 5 kinds of offer. What are the 5 kinds of offer? एक बार हम देखते हैं. A general offer that is open to the public at large. A special offer which you give either to a single person or to a particular group of persons. Counter offer, offer के बदले में offer देना is known as a counter offer. Cross offer, when two identical offers they cross each other, is known as a cross offer. And lastly is a standing offer. An offer that is open for a particular period of time is known as a standing offer. Okay? काउंटर ऑफर महक काउंटर ऑफर का एग्जाम्पल है जब आप कपड़े खरीदने जाते हो और आप बार्गेनिंग करते हो. नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है. देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बाइंड यू. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ऑफरी एंड अ प्रोमिसी. दे आर द सेम. इग्नोरेंस मतलब यू आर इग्नोरेंट अबाउट दैट फैक्ट, मतलब आपको पता नहीं था कि उसने भी वही चीज को खरीदने का ऑफर दिया है. क्या आईपीओ जनरल ऑफर माना जा सकता है? यस, एन आईपीओ कैन बी रिगार्डेड एज अ जनरल ऑफर बिकॉज इट इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज. अपूर्व कार्लिल वाले केस में, जी हाँ, कार्लिल के फेवर में केस हुआ था. सो बेसिकली शी वॉज एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड. ओके,
क्रॉस ऑफर वैलिड कब होगा? दोनों में से कोई भी एक पार्टी जब ऑफर को एक्सेप्टेंस देगी तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. ओके प्रिंस कह रहा है काउंटर ऑफर में ऑफर और कौन होगा और ऑफरी कौन होगा? लास्ट में जब कभी भी एक्सेप्टेंस होता है, दोनों पार्टीज अग्री करती, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन ऑफर और है और कौन ऑफरी है. तो वो हम अभी जज नहीं कर सकते. दैट विल डिपेंड कि किसके ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है. ओके यस, मेरी क्लास के बाद आज बीसीआर की क्लास शुरू होगी. Yes, a tender can be regarded as both a general offer also and an open offer also because it is open for a particular period of time. तनुज संभालो अपने आप को. किसी ने पूछा है मैम दीपिका एंड रघुवीर वाले केस में अगर अमाउंट डिफरेंट है तो वो क्या काउंटर ऑफर होगा? नो, ऑफर के बदले में जब आप ऑफर देते हो तब वो काउंटर ऑफर होता है. यहां पे जब आरके ने दीपिका को ऑफर दिया था ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दीपिकाज ऑफर. हाँ, दीपिका पूछती है कि क्या तुम मेरा घर 2 करोड़ में खरीदना चाहते हो? फिर आरके कहता है उसके ऑफर के जवाब के लिए कि मैं खरीदना चाहता हूं बट 1.5 करोड़ में खरीदूंगा, 2 में नहीं खरीदूंगा. देन दैट वुड बी अ काउंटर ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया. लविश सुनो मेरे सवालों को और मेरे एक्सप्लेनेशन को. आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट. स्टैंडिंग ऑफर वैभव मैंने उसका एग्जाम्पल दे दिया है. लिसन टू मी वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग. आप लोग इधर उधर मस्ती करना बंद करो. ओके बाइंडिंग का मतलब क्या होता है मैंने अभी एक्सप्लेन किया. किसी बच्चे ने मुझे पूछा था, सुनो मैं जो पूछ रही हूं, ठीक है. कार्रिल का केस वापस से एक्सप्लेन कर देती हूं, सुन लो मेरी बात जस्ट फॉर ऑल. यहां पे क्या हुआ था, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दी थी कि कोई भी अगर हमारे स्मोक बॉल्स कंज्यूम करता है दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा. बट नाउ किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया था कार्लिल को इन स्पाइट ऑफ कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस. सो शी वाज एलिजिबल टू दैट रिवॉर्ड. व्हाई? क्योंकि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना वाज कंसिडर्ड एज अ जनरल ऑफर. उसने मेडिसिन को खरीदना वाज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर. एन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर makes an agreement enforceable by law and there was a breach of the contract and thus she was eligible to the reward. Okay, तो आज के लिए explanation wise बस इतना ही होगा. Now you will be having a 15 minutes break after which the BCR lectures will start. और सुन लो ध्यान से, BCR के lectures किन बच्चों के लिए होने वाले हैं? उन्हीं बच्चों के लिए होने वाले हैं जिन्होंने 1 तारीख से क्लास लेना चालू किया है. तो जो न्यू एडमिशंस के बच्चे हैं उन्हीं की अभी बीसीआर की क्लास होने वाली है. जो लोग पहले से क्लास ले रहे हैं आप लोगों के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और यही 3 चैप्टर्स मैम अभी करवाने वाली है. तो आप लोगों को कुछ दिनों के लिए बीसीआर के क्लासेस नहीं है. Once old student and new students they come at par with each other, फिर मैम सबके लिए बीसीआर की क्लास लेगी. बट करेंटली मैं लास्ट टाइम कह रही हूं सिर्फ नए बच्चे जो है जिन्होंने 1 तारीख से क्लासेस लेना शुरू किया है उन्हीं के लिए अभी बीसीआर के लेक्चर्स है. बाकी के बच्चे आर फ्री फॉर द डे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. बाय बाय. And the class timings tomorrow are 1:45. Please don't ask me every day and again कि मैम क्लास कब चालू होगी. You know the class timings are from 1:45 to 2:45. Okay? क्लास शुरू जैसे ही 1:45 हो जाता है या जैसे ही 1:40 हो जाती है, 1:30 होती है, प्लीज डोंट कॉल मी एंड प्लीज डोंट मैसेज मी. आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू योर कॉल्स एंड मैसेजेस. प्लीज
लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. 1:45 की क्लास है, आपकी क्लास 1:45 को शुरू हो जाएगी. कुछ कारण के वजह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता है या अगर लेट होता है, आई विल बी कम्युनिकेटिंग इट टू यू इन द ग्रुप. मैं ग्रुप पे मैसेज डालती हूं, फिर भी हर रोज मुझे 10 बच्चों के कॉल्स आते हैं, मैम आज क्लास नहीं है क्या, मैम क्लास 1:45 को चालू होने वाली है. मतलब कम ऑन गाइज, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल? स्टॉप बिहेविंग लाइक स्मॉल किड्स. ओके, तो अगर कुछ चेंजेस है, आई विल बी कम्युनिकेटिंग द चेंजेस टू यू ऑल इन द ग्रुप. अदरवाइज 1:45 every day we will be meeting in the class. Okay, this is it for today. See you all tomorrow. Bye bye.